Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will do some questions based on lines and angles. So here we have the first question. There are three intersecting lines. There are three intersecting lines. This is A, O, B. This is C, O, D, and this is E, F. And you have given this CO is 30 degree, CO is 30 degree, and this BOD is 35 degree. You have to find the values of the rest of the angles. आपको बचे हुए एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको AOF फाइंड करना है, FOT फाइंड करना है, AOC फाइंड करना है एंड एंगल BOE फाइंड करना है. ठीक है, इन सब की आपको वैल्यूज फाइंड करना. तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि तीन लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दीज आर स्ट्रेट लाइंस. ऑब्वियस सी बात है, लाइन विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अगर इन तीनों की बात करें तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रही है 180 डिग्री. ठीक है, मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री. द रीजन इज एंगल्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अगर ये 30 है, ये 35 है, देन दिस विल बी ऑफ. दैट मीन 180 minus this will be 180 degree minus 65 degree, which is equals to 125 degree. Is it clear? Is it clear to all? Sorry, 115 degree. ठीक है, ये मैंने orally किया, verbally किया है. Let us do एंगल 35 डिग्री प्लस एंगल BOE प्लस एंगल 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल्स मेड ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स मेड ऑन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो 35 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो एंगल BOE हमारे पास कितना आ गया बट्टी 115. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अगर ये 115 आ गया, इसके सामने वाला दिस विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल BOE इज इक्वल्स टू एंगल AOE विच इज इक्वल्स टू 115 डिग्री. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ similarly angle COE is equals to this angle is equals to this angle. That mean angle DOF which is equals to 30 degree, because the value of angle COE is 30 degree. Is it clear? Now next, this AOC is and BOD are also vertically opposite angle. This AOC and BOD are vertically opposite angle. That mean AOC will be equals to angle BOD which will be equals to 35 degree. The reason of all the angles are vertically opposite angle. Is it clear to all? Is it clear to all? कुछ नहीं था, देखने में ऐसा लग रहा था क्या हेक्टिक सा है, कुछ भी नहीं क्लियर है, बट यू हैव टू सी द ऑब्जर्वेशन. मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, तीन लाइन इंटरसेक्ट करिए, तीन लाइन है, दैट मीन वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन. एंड वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन कॉन्सेप्ट एंगल्स ऑल्सो, like vertically opposite angle, adjacent and linear pair, so we just use it. Is it clear? Is it clear to all? Now the next question is in our previous video we did a question of alternate interior. So in this we will do another question, something like we have a question. This is from your NCERT book, kind of. Sorry, not kind of, exactly this is from NCERT, and there are some questions exactly based on this concept in R.D. Sharma, although in other books also, if you are preferring like some other authors like Dev Jyoti or Pearsons,
or also some of the students are doing if somehow simple papers also. So you will get some questions based on this concept, that is this is a line parallel to this line, might be the digits or the vertex are not same from that NCERT, it may be different, but this is the exactly question like in measurements I'm talking. PQRS दो पैरेलल लाइन्स है बेटे, PQRS दो पैरेलल लाइन है, आपको कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है, ठीक है, और ये एंगल आपको 135 डिग्री गिवन है एंड दिस इज यू हैव इज ऑफ 40 डिग्री. नाउ यू नीड टू फाइंड दिस एंगल. बेसिकली दिस इज द वर्टेक्स M, here we have X and here we have Y and you need to find the value of angle M. आपको एंगल M फाइंड करना है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे. देखो मुझे ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है ना, तो ये कंप्लीट स्ट्रेट ट्रांसवर्सल है, ये कंप्लीट ट्रांसवर्सल नहीं है हमारे पास, और ना ही ये कंप्लीट ट्रांसवर्सल है, ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी विच इज़ पैरेलल टू, ये कोई रैंडम लाइन है AB, बट इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ एंड PQ इज फर्दर पैरेलल टू RS. सो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है. अगर ये तीनों लाइन आपस में हमारे पास पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर. इसको मैं थोड़ा मतलब दोबारा बना रही हूँ डायग्राम. ये मैंने AB लाइन जो कंस्ट्रक्शन में की थी, ठीक है, ये आपको RS लाइन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है. So now this is the transversal, this angle is of 40 degree, this is the vertex M. I'm taking half angle because आधा एंगल तो लाइन के ऊपर है ना, और ये तो this will be also 40 degree because these lines are parallel, then these angles are what, alternate interior, ठीक है. तो मैं बोल दूँ that mean angle YMB is equals to 40 degree, reason is alternate interior angle. Clear है? Is it clear? नाउ सेकेंड थिंग इज, अब देखो ये मेरे पास 40 डिग्री आ गया. नाउ आई नीड टू फाइंड दिस वन. अब देखो ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं इस डायग्राम में आऊँ, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर फॉर्म कर रहे हैं. एक बार डायग्राम के ऊपर चलते हैं, डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको. दिस इज PQ लाइन विच इज गिवन टू अस, दिस इज AB दैट आई हैव मेड इन कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है. दिस एंगल इज ऑफ 135 डिग्री एंड दिस यू नीड टू फाइंड. See, if this is 135 and these both are what angle? Co-interior angles. If these both are co-interior, then this angle will be of 45 degree. This angle will be of 45 degree. Now, that means this angle is equals to 45 degree. This is of 40 degree. That entire angle will be of 85 degree. Is it clear? इज इट क्लियर. मैंने वर्बली भी बताया है और डायग्रामेटिकली भी बताया है, डायग्राम्स को ब्रेक करके. इज इट क्लियर? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. बेसिकली यू जस्ट मेड द कंस्ट्रक्शन इफ यू रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन एंड जस्ट वर्क ऑन दैट पार्ट. दैट्स इट. लाइक हमें इतना पता है ये पैरेलल लाइन है तो हम ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. समटाइम्स यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्सो. और इफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक मैम आपने ये लाइन ड्रॉ किया AB, ये हमारे पास गिवन है RS, ठीक है, और आपने कहा था कि ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज Y, दिस इज हाफ एंगल ऑफ M, ठीक है. तो आपको कि मैम ये अगर 45 है, इफ दिस इज 45 तो ये और ये मिलके भी को इंटीरियर बना रहे हैं. बिल्कुल बना रहे हैं. अगर ये मिलके को इंटीरियर बना रहे हैं तो ये कितने का होगा 140. अब ये और ये मिलके कितना बना रहे हैं, लीनियर पेयर. इफ दिस इज 140 देन दिस इज 40 डिग्री. आप जैसे चाहे क्वेश्चंस को वैसे मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर? आई होप लिख लेंगे आप लोग. ये थोड़ा वर्बली था, थोड़ा डायग्रामेटिकली था, चलो लिखवा देते हैं, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है समटाइम्स क्वेश्चन. ऐसे नहीं करा रही मैं, हम डायरेक्ट ही करेंगे. अगर आपको वैसे करना है यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है. हमें पता है AB इज पैरेलल टू RS एंड एंगल RYM is equals to angle YMB. The reason behind it, alternate interior angle. Now the angles are this all is equals to 40 degree. ठीक है, ये 40 आ गया. अब ऊपर चलते हैं डायग्राम पे.
this is the line PQ, this is line AB, and this we given, this is of 135 degree, so this will be, now ये जो x था ये हमारे पास m था, now XMB प्लस MXQ, ये दोनों एंगल्स हमारे पास 180 डिग्री है, रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, समटाइम्स इट रिटन एज कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑल्सो। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक साइड हो और पैरेलल साइड के नीचे वाला और पैरेलल साइड के ऊपर वाला, ठीक है। तो ये अगर एंगल हमारे पास 130, ये मुझे फाइंड करना है, इसको मैं कुछ एक्स ऐसे ही रहने देती हूँ, XMB, और ये है मेरे पास 135 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, तो एंगल XMB आ गया बेटे हमारे पास 45 डिग्री। तो एंगल XMY कंप्लीट कितना हो गया, एंगल XMB प्लस एंगल RY, सॉरी नॉट RY, YMB, तो ये कितना हो गया, दिस इज ऑफ 45 डिग्री, दिस इज ऑफ 40 डिग्री, दिस एंटायर एंगल इज ऑफ 85 डिग्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Just look the video clearly, listen it carefully, and here is the question. Now the another question is also kind of based on this concept, basically based on construction and using the concepts of angles, that is here is the question. You have ये AB line है, some Z are formed like this, and this is the line, ठीक है। This angle is of 150 degree, this is of 70 degree, naming is this is A vertex, B vertex, here is C, here is E, here is F, here is T, and this is given you as Y, and this is given you as X, and further you have is AB is parallel to EF and this is parallel to CD. This is the question you have given, ठीक है। एक बार सॉरी अगर ये लाइन डिस्टर्ब करी आपको, ये क्वेश्चन है AB पैरेलल है CF EF के और CT के, ठीक है। दैट मीन ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, मुझे X और Y की वैल्यू पता नहीं है, आई नीड टू सॉल्व Y एंड X। नाउ वर्क ऑन द क्वेश्चन। देखो, इफ दिस इज अ पैरेलल लाइन आई कैन एक्सटेंड इट, अगर एक्सटेंड कर दूँ, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं मेरे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन X प्लस Y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना क्लियर है? और मुझे ये भी पता है दिस प्लस दिस, इसमें आ जाओ, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, these twos are parallel line and this is the transversal, so this is 150 degree plus y equals to 180 degree। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटी, 30 डिग्री। यूज दिस y इन दिस, अगर y हमारे पास 30 आ गया तो x कितना आ गया, 70 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। दैट्स इट। सी हाउ इजी द क्वेश्चन इज। द थिंग इज जस्ट वी जस्ट नीड टू चेक दैट क्या यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ है हमारे पास, क्या नॉलेज है, मतलब कुछ में पैरेलल लाइंस हैं तो कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, कॉन्जिक्यूटिव, इंटीरियर, एक्सटीरियर। अगर वो नहीं है, क्या कहीं पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो मुझे चेक करना है बेसिकली। हियर इज द क्वेश्चन, दैट्स इट। वन अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, लेट मी डू हियर। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये लाइन है, दिस इज दिस, ये ऐसे लाइन है और फिर उसके बाद इसको ऐसा, ठीक है। You have to find this question, this angle, this is the vertex E, this is the vertex T, here we have C and here it is A, B, okay। ये क्वेश्चन आपको, ये गिवन है आपको 123 and here you are given that 145 degree,
देखो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है काइंड ऑफ। देखो ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल पता है, ये इसके पैरेलल है, मुझे पता है दैट ए बी इज पैरेलल टू ई डी और डी, है ना। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर दूँ यहाँ पे ये कुछ है एम एन, मैंने कंस्ट्रक्शन किया मैंने क्या, ए बी इज पैरेलल टू एम एन और एम एन इज पैरेलल टू ए बी, मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 को इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन मैं डायग्राम के ऊपर ही बता रही हूँ आपको, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चंस। देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मैं डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज ऑफ 123 डिग्री, दिस विल बी ऑफ व्हाट, 180 माइनस 123 डिग्री, दैट मीन 57। और मुझे ये पूरा एंगल पता है कितने का है, 145 का। 145 में से अगर 57 गया तो ये कितना आ गया, 88 डिग्री, दैट मीन दिस एंगल इज ऑफ 88 डिग्री। अब हमने ये पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, अगर ये 88 डिग्री तो दिस विल बी अगेन 88 डिग्री, रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर, दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन you have. I hope this video is useful to you, clear to you, my points, concepts are. We will do some another questions also from RD and from Pearson in the next video. Thank you.